Alright, so we have seen two sets of CAT 2019 data interpretation, and now let's move on to the third and fourth set. Now these first two sets were really easy. Everyone should have attempted them, and most of those who have attempted it, they have got it right? That means if you really want to get a 99 plus percentile, you must attempt those easy sets, right? So let's go to set number 3. Right, this is the data. So the data is not a small one, right? It has one table, but there are a couple of paragraphs, so you have to give it some time. I will give you about 5 minutes for you to understand what is given, for you to understand what is not given, and how you may find what is not given. So take 5 minutes, pause the video, take 5 minutes, read everything, understand how are you going to solve this one, and then come back to me. Alright, so I hope by now you have read and understood the data, what is given. Okay, let us move towards the questions. The first question is on the screen. What was the highest total score? I'm going to give you the level of difficulty this time. This is moderate to difficult, right? But more on the moderate side, so don't panic, don't get stressed out. What was the highest total score? Your options are 23, 24, 25, 21. Moderate to difficult, more on the moderate side, so I'm going to give you about 3 minutes, not more than that. So pause the video, take 3 minutes, try to solve the question on your own, and resume when you are done. Alright, so I hope by now you are done with this question. Let's move towards the next question, that is question 2. What was Zeneca's total score? Your options are 21, 22, 23, 24. These are your options, and once again the level of difficulty is moderate, right? I'm going to give you maximum of 3 minutes, not more than that, definitely not more than that. So take 3 minutes, pause the video, try to solve the question on your own, and resume when you are done. Alright, so I hope by now you are done with this question. This is question 2. Let's move to question number 3. Which of the following statements is true? Zeneca's score was 23. Zeneca was the highest scorer. Xyla was the highest scorer. Xyla's score was 23. So that's the question 3. The level of difficulty is moderate, and the time you should require is about 2.5 minutes or 3 minutes. But please remember that if you have invested a lot of time with the data set, if you have invested in understanding the table and filling the gaps of the table, you should take less than 2 minutes for this one. So moderate question, take maximum of 3 minutes and resume when you are done. Alright, so I hope by now you are done with question number 3 as well. Let's move towards question 4, the last question of this set. What was Tanzi's score in round 3? What was Tanzi's score in round 3? So once again, level of difficulty is moderate to difficult. Take maximum of 3 minutes, not more than that. Try to solve the question on your own. Resume when you are done. Okay, so I hope you are now done with all the questions of this set. Now, as I said, this set was moderate to difficult, right? It would not be so easy as the previous 2 sets that we have seen, but it is also not so difficult that you cannot solve it in a limited time format, right? So let's try and see how do we go about it. Okay, so the data is on the screen. So what we are going to do is we are going to read the data together. We are going to understand few things, and then we are going to move. 6 players: Tanzi, Umeza, Wangdu, Xyla, Yonita, and Zeneca. So let's just call them T, U, W, X, Y, Z. Competed in an archery tournament. The tournament had 3 compulsory rounds, rounds 1 to 3. In each round, every player shot an arrow at a target. Okay, so one round, every player shoots once, hitting the center of the target called bullseye, fetched the highest score of 5. So this is one information that we need to remember, that if you score bullseye, let's call it BE, you get 5. Okay. The only other possible scores that a player could achieve were 4, 3, 2 and 1. So there is no 0, guys. So bullseye is 5, then we have 4, 3, 2 and 1. Okay. Every bullseye score in the first 3 rounds gave a player 1 additional chance to shoot in the bonus rounds 4 to 6. This is a very, very important statement, that whoever scores a bullseye in the first 3 rounds gave 1 additional chance to shoot the bonus in the rounds 4 to 6. So राउंड 4 to 6 में वही प्लेयर्स पार्टिसिपेट करेंगे जिन्होंने बुलजाई स्कोर किया है. वन बुलजाई विल गिव यू वन अपॉर्चुनिटी टू शूट. Okay, let's move on. A player's total score in the tournament was the sum of his or her scores in all the rounds played by him or her. So that's a relief, right?
आपको सिंपल उसका टोटल कर देना है, सम कर देना है. द टेबल बिलो प्रेजेंट्स पार्शियल इंफॉर्मेशन ऑन पॉइंट्स स्कोर्ड बाय द प्लेयर्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द टूर्नामेंट. इन द टेबल एनपी मींस that player did not participate. Again, one thing that we have to keep in mind, that NP means player did not participate. मतलब बेसिकली कोई स्कोर नहीं है, ठीक है. Okay, while a hyphen means that the player participated in that round and the information is missing. Hyphen का मतलब है कि वो डेटा मिसिंग है. आप टेबल में देख रहे हो कि बहुत सारे हाइफन है. So for example, you see round 1, round 2 and round 3. या तो आपको स्कोर दिए गए हैं या तो हाइफन है. इसका मतलब आपको ये समझ जाना चाहिए कि राउंड 1, 2, 3 में तो सबने पार्टिसिपेट किया है, राइट. राउंड 4, 5, 6 में वही लोग पार्टिसिपेट करेंगे जिन्होंने बुलजाई स्कोर किया है. एक बुलजाई राउंड 4, 5, 6 किसी में से एक चांस मिलेगा. 2 बुलजाई 2 चांस, 3 बुलजाई 3 चांस, है ना. ओके ओके ओके. सो कैन वी जस्ट सी, बहुत सब कुछ पढ़ के आप चीजों को इंटरप्रेट मत कीजिए. थोड़ा थोड़ा पढ़ के जितना समझ में आ रहा है उसको इंप्लीमेंट करते जाइए, राइट. अभी तक हमारा अंडरस्टैंडिंग इतना लेवल का बन चुका है दैट एक आर्चरी टूर्नामेंट चल रहा है. एक बुलजाई स्कोर करोगे तो एक मौका और मिलेगा, 2 बुलजाई स्कोर करोगे तो 2 मौके और मिलेंगे. एनपी लिखा है इसका मतलब नॉट पार्टिसिपेटेड एंड हाइफन इसका मतलब स्कोर मिसिंग है. इतना समझ में आया हमें. इससे जितना भी कंक्लूड या फिर डिड्यूस हो सके उतना कर लो, सो दैट आपका प्रेशर, आपका जो लोड माइंड पे आएगा वो कम हो जाएगा. So let's have a look at the table. Okay. Now see, Tansy ने, so T ने 2 बार पार्टिसिपेट नहीं किया लेकिन 1 बार स्कोर किया है. इसका मतलब मैं बस राउंड 4, 5, 6 की बात कर रहा हूं. T ने 2 बार पार्टिसिपेट नहीं किया, 1 बार पार्टिसिपेट किया. इसका मतलब उसका बुलजाई राउंड 1, 2, 3 का बुलजाई कितना होगा? कोई एक, कम से कम एक बुलजाई होगा इसके पास. नॉट कम से कम एक ही बुलजाई होगा इसके पास. सो मैं इसको यहां पर लिख देता हूं पॉइंट्स को कि बुलजाई के 5 पॉइंट, फिर 4, 3, 2, 1. लेट मी मेक अनदर कॉलम हियर. ये है बुलजाई ऑफ राउंड 1 to 3. ओके, वी नो दैट टैंजी ने 1 बुलजाई स्कोर किया है, 1. सो ये बुलजाई का नंबर है. ये कितने बुलजाई? टैंजी ने 1 बुलजाई कहीं ना कहीं स्कोर किया. सो ऑब्वियसली या तो यहां 5 होगा या तो यहां 5 होगा. ओके गुड. चलो उमेजा, यू ने कितनी बार बुलजाई किया होगा? यू ने 2 बार पार्टिसिपेट किया, 2 शॉट मिले, इसका मतलब 2 बार बुलजाई किया होगा, राइट. सो वुड यू वांट मी टू राइट दिस वे और वुड यू वांट मी टू राइट दिस वे? आई थिंक बेटर ये होगा कि मैं ऐसा लिखूं कि यहां पर 1 5, यहां पर 2 5, ऐसा लिखते हैं सो दैट थोड़ा क्लैरिटी रहेगा. वांगडू को देखिए, वांगडू ने पार्टिसिपेट 4, 5, 6 में किया ही नहीं, मतलब नो बुलजाई. नो बुलजाई मतलब यहां पर भी लेस देन 5 का स्कोर होगा, यहां पर भी लेस देन 5 का स्कोर होगा फॉर श्योर. इतना हमें पता ही चल गया है. इसका मतलब वांगडू का हाईएस्ट स्कोर क्या हो सकता है? वांगडू का हाईएस्ट स्कोर. सो लेट मी आल्सो मेक अ कॉलम फॉर द टोटल स्कोर. लेट्स से यहां पर मैं टोटल लिखूंगा. सो वांगडू का इधर तो 4 ही है ऑलरेडी, यहां पर 4 होगा मैक्सिमम, यहां पर भी 4 होगा मैक्सिमम. इसका मतलब वांगडू का मैक्सिमम 12 हो सकता है. मैक्सिमम 12 हो सकता है ना. मैक्सिमम 12 हो सकता है. ठीक है, चलो वो हमने लिख दिया है, कोई बात नहीं. लेट्स मूव टू जाइला. जाइला ने 1 5 इधर और इधर हाइफन है, देखो मतलब स्कोर मिसिंग है. इसका मतलब जाइला ने 3 बार उसको मौका मिला, इसका मतलब उसने 3 बार बुलजाई मारा होगा. 5 5 5, यहां पर लिख देते हैं 5 5 5. ओके, 5 5 5 1 एंड 5 प्लस यहां पर एक स्कोर उसका मिसिंग है. इसका मतलब जाइला का टोटल कितना हो सकता है? सो 5 + 5 + 5 + 5 20 + 1 21 एंड 21 प्लस समथिंग. सो 21 प्लस लेट्स से A. ओके, आई एम जस्ट थिंकिंग कि जाइला का स्कोर 21 प्लस समथिंग हो सकता है. ठीक है. योनिता देखिए, योनिता 1 बुलजाई है, 5. 1 बुलजाई मतलब यहां पर कहीं ना कहीं एक जगह पर 5 होगा योनिता में, है ना. ओके, जेनेका के पास यहां पर 1 चांस, दूसरे चांस 2 5 होंगे उसके पास. जेनेका के पास 2 5 होंगे, है ना. कहीं इनमें से कहीं एक होगा, 2 5 होंगे. अभी तक हमें सिर्फ इतना पता है कि वांगडू के पास यहां पर कम से कम
ज्यादा से ज्यादा 4 होगा, इधर भी ज्यादा से ज्यादा 4 होगा। जाइला का 5 5 5 है, समझ में, कैसे समझ में आया? बिकॉज यहां पर हर जगह उसने कुछ ना कुछ शॉर्ट किया है, मतलब उसको मौका मिला है तीनों बार, तीनों बोनस राउंड में, तीनों बोनस राउंड में मौका मिला। इसका क्या मतलब है कि पहले तीनों राउंड में उसने बुलजाई स्कोर किया होगा। ओके, चलिए अब धीरे धीरे हम लोग जो दूसरे स्टेटमेंट्स दिए हैं उसकी तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि वहां से हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन मिलेगा, राइट। पहला स्टेटमेंट पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? टी यू, टैंजी, उमेजा एंड योनिता हैड द सेम टोटल स्कोर। टैंजी, उमेजा एंड योनिता, टी यू वाई का टोटल सेम है। सो टी में मैं लिख देता हूं लेट्स से बी, यू में लिख देता हूं बी, वाई में लिख देता हूं बी। मैंने यहां पर ए यूज कर लिया है अननोन, तो बी यूज कर रहा हूं। तीनों का टोटल सेम होगा, बी बी बी, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। द टोटल स्कोर्स फॉर ऑल द प्लेयर्स एक्सेप्ट वन वर इन मल्टीपल्स ऑफ 3। देखो ये बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन है। एक्सेप्ट वन वर इन मल्टीपल ऑफ 3, एक को छोड़ के, एक स्कोर को छोड़ के बाकी सारे स्कोर 3 के मल्टीपल हैं। इससे हम क्या कह सकते हैं? इससे हम ये एक चीज तो पक्का कह सकते हैं कि देखिए B हैज टू बी अ मल्टीपल ऑफ 3। तो मैं इसको कहीं ना कहीं लिख देता हूं कि B इज अ मल्टीपल ऑफ 3। कौन सा मल्टीपल हो सकता है, ये कुछ सोच सकते हैं हम उसके बारे में? चलिए, B कहां कहां पर दिख रहा है आपको? टैंजी के पास है, उमेजा के पास है एंड योनिता के पास है, करेक्ट। टैंजी के पास एक 5 है, कहीं ना कहीं इसमें से एक 5। सो 1 5 प्लस 5 प्लस 4 14, तो ये है 14 प्लस समथिंग, है ना, ये है 14 प्लस समथिंग। सो मैं यहां लिख देता हूं दिस इज 14 प्लस समथिंग, समथिंग मतलब लेट्स से बॉक्स, ओके, या फिर क्योंकि ये बहुत बड़ा हो जाएगा तो लेट्स से 14 प्लस डैश समथिंग। उमेजा देखिए, उमेजा के पास 2 5 है, मतलब 10, तो 2 5 कहीं ना कहीं यहां पर आ जाएंगे। 10 प्लस 3 13 प्लस समथिंग, ओके। एंड योनिता देखिए, योनिता एक 5 है, 5 प्लस 5 10 प्लस 3, 5 प्लस 5 प्लस 3 13 प्लस समथिंग, एक स्कोर उसका एक कहीं पे मिसिंग होगा, तो योनिता इज 13 प्लस समथिंग। 14 प्लस समथिंग, 13 प्लस समथिंग, 13 प्लस समथिंग, ये एक 3 का मल्टीपल होना चाहिए। क्या हो सकता है वो? इट कैन बी आइदर, सो लेट मी, या यहां पर आइए, देखिए 13 प्लस समथिंग, 14 प्लस समथिंग एंड 13 प्लस समथिंग, ये एक 3 का मल्टीपल है। तो क्या हो सकता है ये? या तो ये 15 होगा या तो ये 18 होगा, क्योंकि हाईएस्ट स्कोर तो आप 5 का ही बुलजाई का ही कर सकते हो। ओके, अगर ये 18 है, अगर ये ओवरऑल 18 है, इसका मतलब यहां पर 5 आएगा, यहां पर 4 आएगा, यहां पर 5 आएगा, तो ये 13 वाले के पास बुलजाई एक होना चाहिए। देख लेते हैं क्या हमारे पास 13 वाले के पास बुलजाई है क्या? 13 वाले मतलब ये उमेजा, चलो उमेजा के 2 बुलजाई तो ऑलरेडी गिन लिए हमने, क्या उसके पास एक और बुलजाई है? नो, उमेजा के 2 बुलजाई तो गिन लिए थे हमने, क्या उमेजा के पास एक और बुलजाई है? नो, इसका मतलब यहां पर 5 पक्का नहीं आ सकता, सो दैट मींस यहां पर 5 नहीं है। और अगर 5 नहीं है तो ऑब्वियसली क्या होगा, ये टोटल 18 नहीं हो सकता, सो ऑब्वियसली कितना होगा? 15। इन दैट केस ये होगा 2, ये होगा 1 और ये होगा 2, और 15 ही उनका टोटल पॉसिबल है, ये हमें समझ में आ गया है। तो वापस चलते हैं, यहां पर डेटा मिल चुका है अपन को B, सो B इज 15, ये हमें पता चल गया है ना, तो B इज 15 है, इसका मतलब है यहां पर मैं ये 21 प्लस A है, ठीक है, ये पता चल गया 15, ये पता चल गया 15, ये पता चल गया 15, है ना। इसका मतलब ये होगा कि 5 प्लस 4 प्लस 5, तो इसका जो मिसिंग स्कोर होगा टैंजी का वो होगा 1। तो यहां पर मैं उसके सारे स्कोर लिख देता हूं कि 5, एक स्कोर होगा 5 कहीं पे यहां पर, और एक स्कोर होगा 1। ओके, उमेजा का ये U देखिए,
दो स्कोर 5 हैं और वहां पर था 5 + 5 + 1 + 2 13, तो इसका एक मिसिंग स्कोर 2 होना चाहिए। तो 5 5 एंड 2, 5 5 एंड 2 ये उसके राउंड 1 to 3 के स्कोर्स हैं। ओके, वांगडू ठीक है। योनिता पे आते हैं। योनिता के पास एक 5 है, एक 5 एक 3 है, तो 13 अगेन, तो इसका भी मिसिंग स्कोर एक 2 होना चाहिए। सो योनिता का भी एक मिसिंग स्कोर 2 है। ये है उनके मिसिंग स्कोर्स, ये है उनके मिसिंग स्कोर्स किसके, राउंड 1 से 3 के। तो अब हम पूरे राउंड 1 से 3 की बात कर रहे हैं, तो यहां पर मैं लिख देता हूं कि स्कोर ऑफ राउंड 1 and 3। और कौन से स्कोर, मिसिंग वाले स्कोर। कौन से स्कोर, मिसिंग वाले स्कोर, मिसिंग स्कोर्स। करेक्ट, ये हमने लिख दिया। 5 5 5 मिसिंग था, तो यहां पर भी लिख दिया। 5 and 2 मिसिंग है, 5 5 मिसिंग है यहां पर। ठीक है, चलो अभी तक जेनेका का टोटल का अभी तक अपने को आइडिया नहीं है। वांगडू का टोटल मैक्सिमम 12 हो सकता है, इतना पता चला। 12 नहीं होगा तो क्या होगा, 12 नहीं होगा तो क्या होगा, 11 हो सकता है, 10 हो सकता है, बिकॉज कोई एक नंबर 3 का मल्टीपल नहीं है, ये भी मालूम है अपने को। चलो यहां तक अभी तक इतना समझ में आया है, आगे बढ़ते हैं। द हाईएस्ट टोटल स्कोर वॉज 1 more than double of the lowest total score. Highest total score was 1 more than double of the lowest total score. अच्छा, मतलब अगर लेट्स से हाईएस्ट स्कोर अगर x है, सॉरी लोएस्ट स्कोर अगर x है, तो हाईएस्ट कितना होगा, 2x + 1। अगर हाईएस्ट x है तो लोएस्ट कितना होगा, 2x + 1। ओके, ठीक है, ये समझ में आया हमें। इसका मतलब ये पता चल गया कि हाईएस्ट स्कोर कैसा होगा, ऑड होगा, ये समझ में आ गया। तो ये हम लिख देते हैं कहीं कि हाईएस्ट स्कोर जो है 2x + 1, ये कैसा होगा, ऑड होगा, नंबर 1। एंड लोएस्ट स्कोर हैज टू बी x। लोएस्ट स्कोर x, हाईएस्ट स्कोर होगा 2x + 1 जो ऑड होगा। ओके, हाईएस्ट कौन स्कोर कर सकता है, ये चेक कीजिए। क्या टैंजी का स्कोर हाईएस्ट है 15? नो। क्या उमेजा का स्कोर 15 हाईएस्ट है? क्या वांगडू का स्कोर 12? नो। योनिता का नहीं हो सकता 15 स्कोर, तो इसका मतलब हाईएस्ट स्कोर किसका हो सकता है, जेनेका का ही स्कोर हाईएस्ट हो सकता है, जेनेका। तो जेनेका एंड जाइला, ये दोनों अभी हाईएस्ट स्कोर की रेस में है। देखिए जाइला का स्कोर क्या है, 5 5 5 1 5 एंड समथिंग मिसिंग, 21 + a। सिमिलरली जेनेका का स्कोर क्या है, यहां पर उसके पास 2 5 हैं, राइट। सो यहां 2 5 आप रख दीजिए, तो 20 + समथिंग, करेक्ट। जेनेका इज 20 + समथिंग, लेट्स से 20 + c। ये दो सिनारियो अभी फिलहाल पॉसिबल है, राइट। ये दोनों सिनारियो फिलहाल पॉसिबल है। जेनेका कहीं पे यहां पर दोनों में 5 और यहां पर कोई एक नंबर मिसिंग, so 5 + 5 + 5 + 5 20 + c, right. And Xyla 5 + 5 + 5 + 1 + 5 + something, that means 21 + a। अब इन दोनों में से हाईएस्ट स्कोर क्या हो सकता है, चलो आइए देखते हैं। लेट्स हैव अ लुक एट Xyla। Xyla का स्कोर है 21 + a, तो ये a जो है ये इधर है, ये 21 + a, a इधर है। a क्या हो सकता है, आप सोचिए, a के पॉसिबल वैल्यूज क्या है, a के पॉसिबल वैल्यूज क्या है, a के पॉसिबल वैल्यूज है 1 2 3 4 5। राउंड 6 में भी वो बुलसआई मार सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वापस आते हैं, एक नोट बनाते हैं। सो ये एक 21 + a जो स्कोर है ये क्या हो सकता है, सो a कैन बी 1 to 5, इसका मतलब ये हो सकता है 22 23 24 25 एंड 26। 22 23 24 25 26 ये हो सकता है नंबर 1, ठीक है। सिमिलरली दूसरा स्कोर था 20 + c, है ना, और c कहीं यहां पर है, c कहीं यहां पर है। लेट्स से मैंने यहां पर c है 5 5 एंड c ऐसा अज्यूम किया हुआ है, तो c कहीं यहां पर, इसका मतलब c हैज टू बी 1 2 3 4 5 नहीं हो सकते, बिकॉज तीनों तीन बुलसआई नहीं हो सकते। इट कैन नॉट बी 5 5 5, बट इट कैन बी 5 5 4 एंड सो ऑन। तो यहां पर जो c है वो हो सकता है 1 2 3 4। तो इधर आते हैं, सो 20 + c हो सकता है 21 22 23 24।
21, 22, 23, 24। इसका मतलब क्या है कि हाईएस्ट स्कोर किसका हो सकता है? सो अगर मैं हाईएस्ट स्कोर लेट्स से 21 प्लस ए वाला लेता हूं, करेक्ट, हाईएस्ट स्कोर मेरा है ऑड, तो मैं सारे इवन नंबर तो निकाल ही दें पहले। सो 22 गया, 24 गया, 26 गया, 22 गया, 24 गया। हाईएस्ट स्कोर हो सकता है 23 या तो 25। ओके, प्रॉब्लम यह है कि अगर हाईएस्ट स्कोर 23 है, अगर हाईएस्ट स्कोर 23 है, लेट्स से ये हाईएस्ट स्कोर है और ये लोएस्ट स्कोर है, अगर हाईएस्ट स्कोर 23 है तो इस फॉर्मूला के हिसाब से लोएस्ट कितना होगा? 11 इंटू 2 प्लस 1, सो लोएस्ट 11 होगा। और अगर हाईएस्ट 25 है तो लोएस्ट कितना होगा? 12 इंटू 2 प्लस 1, तो 12 होगा। हाईएस्ट के लिए हम यूज कर रहे हैं 2x प्लस 1 फॉर्मूला, लोएस्ट के लिए यूज कर रहे हैं x। नाउ लेट्स थिंक अबाउट दिस पॉसिबिलिटी। अगर हाईएस्ट स्कोर 23 है तो लोएस्ट स्कोर 11 होगा। सोचिए, हाईएस्ट स्कोर 23, लोएस्ट स्कोर 11, दोनों ही 3 के मल्टीपल नहीं है, दो टोटल 3 के मल्टीपल नहीं है, जबकि कंडीशन में ये बोला गया है, कंडीशन में बोला गया कि एक को छोड़ के ही सारे 3 के मल्टीपल हैं, एक को छोड़ के, सिर्फ एक टोटल को छोड़ के सारे 3 के मल्टीपल हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये पॉसिबिलिटी गलत है, दिस इज नॉट द पॉसिबिलिटी। दैट मींस हाईएस्ट स्कोर 23 भी नहीं हो सकता, एक ही पॉसिबिलिटी बच गया है, वो है 25। सो अब हमें पता चल चुका है कि भैया हाईएस्ट स्कोर 25 है, और वो किसका हो सकता है? जो 21 प्लस ए वाली थी, जायला, जो एक्स का है, जायला का। एंड लोएस्ट स्कोर कितना होगा? 12, वो किसका हो सकता है? आप टेबल में देखिए। चलो, हाईएस्ट तो मिल गया 25, यहां पर ए मतलब 4 है, इतना समझ में आ गया। 21 प्लस 4, सो ए की जगह मैं 4 लिख देता हूं। हाईएस्ट इज 25, किसका है? जायला का, तो लिख देता हूं कहीं पे मैं, ये हाईएस्ट है, हाईएस्ट 5, 5, 5, 1, 5, 4, दिस इज द हाईएस्ट स्कोर 25। ठीक है। लोएस्ट किसका हो सकता है? लोएस्ट ना तो टैंजी का है 15, ना तो यू का है, ना तो जायला का है, ना तो योनिता का है, ना तो जेने का है। लोएस्ट एक ही हो सकता है, कौन? लोएस्ट हो सकता है वांगडू, जिसका हाईएस्ट स्कोर, जिसका मैक्सिमम स्कोर 12 था, तो 12 ही है इसका स्कोर। इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर भैया 4 ही है। फोर एमपी टोटल 12 है। मिसिंग स्कोर्स 444, राउंड 1 to 3 के स्कोर 444। ओके, हाईएस्ट पता चल गया, लोएस्ट पता चल गया, टोटल क्या हमें सबका पता चल चुका है? टैंजी का पता है, ओमेजा का पता है, वैंगडू का पता है, जायला का पता है, योनिता का टोटल 15 है पता है, जेनेका का टोटल अभी तक नहीं मालूम है। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है, क्योंकि हमें मिसिंग वैल्यूज भी भरने हैं, हमें मिसिंग वैल्यूज भी भरने हैं। चलिए, द हाईएस्ट टोटल स्कोर वाज वन मोर देन द डबल ऑफ द लोएस्ट स्कोर, ये हमने देख लिया है। फोर्थ पॉइंट, द नंबर ऑफ प्लेयर्स हिटिंग बुलसआई इन राउंड 2 वाज डबल ऑफ दैट इन राउंड 3। नंबर ऑफ प्लेयर्स हिटिंग बुलसआई इन राउंड 2 वाज डबल ऑफ दैट इन राउंड 3। मतलब राउंड 3 में लेट्स से बुलसआई अगर लेट्स से y है तो राउंड 2 में 2y होने चाहिए बुलसआई। ध्यान से आप सुनिएगा, अगर राउंड 3 में बुलसआई y है तो राउंड 2 में बुलसआई 2y होने चाहिए, डबल होने चाहिए। अच्छा, ओके, प्लीज यहां पर ये देखिए कि राउंड 2 में 2 4 तो मिल चुके हैं, 2 4 यहां पर तो ऑलरेडी थे, मिल नहीं चुके, दिए ही थे। इसका मतलब मैक्सिमम बुलसआई कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम बुलसआई राउंड 2 में मैक्सिमम बुलसआई कितने हो सकते हैं? 4, राइट? राउंड 2 में मैक्सिमम बुलसआई 4 हो सकते हैं। यहां पर मैं बुलसआई लिख रहा हूं, इसका मतलब राउंड 3 में कितने होंगे? उससे हाफ, 2। राउंड 3 में उससे हाफ होंगे, ये एक पॉसिबिलिटी हुआ। ओके, राउंड 3 में एक बुलसआई तो है ही है, इसका मतलब दूसरा पॉसिबिलिटी कि यहां पर 1 होगा और यहां पर कितना होगा? 2, राइट? यहां पर या तो 4 या यहां पर 4 और यहां पर 2, या फिर यहां पर 2 यहां पर 1। ये 2 पॉसिबिलिटीज ही हैं और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। और आपको अगर ये नहीं दिख रहा है तो मैं अच्छे से इसको साइड में लिख देता हूं।
लेट्स से यहां पर मैं इसको लिख रहा हूं, लेट्स से ये राउंड 2 है, ये राउंड 3 है, यहां पर अगर 2 बुलजाई तो यहां पर 4 बुलजाई, ऐसे देखिए, और यहां पर 1 बुलजाई तो यहां पर 2 बुलजाई। दीज आर द 2 पॉसिबल केसेस, ठीक है, दीज आर द 2 पॉसिबल केसेस। अब हमें ये सोचना है कि यार इसमें से कौन सा केस पॉसिबल है। जाइला का तो ये 5 ही था, सॉरी यहां पर गलती से मिट गया, 5 5 5, ठीक है। चलो ट्राई करते हैं कि इधर मैक्सिमम 2 ही बुलजाई हो, इधर मैक्सिमम राउंड 2 में 2 ही बुलजाई हो, ठीक है। इसका मतलब जो है कि यहां पर आप एक ही बुलजाई दो, तो यहां पर आप बुलजाई नहीं दे सकते, यहां पर आप एक ही बुलजाई दे सकते हो, यहां पर आप बुलजाई नहीं दे सकते, यहां पर आप एक ही बुलजाई दे सकते हो। तो कितने बुलजाई बचेंगे? चलो अपने पास टोटल बुलजाई कितने हैं? हाँ, यहां पर जितने भी 5 दिख रहे हैं उसको गिन लीजिए आप। टोटल बुलजाई अपने पास कितने हैं वो गिन लीजिए। चलो इसका एक 5 हमने यूज कर लिया है, ठीक है, तो एक 5 मान लो ये वाला यूज हो गया, जो भी यूज हो जाएगा उसके नीचे मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, आई होप आपको दिख रहा होगा। तो एक 5 के नीचे अंडरलाइन कर लिया, और ये तीनों के तीनों यहां पर मैंने यूज कर लिए हैं, तो तीनों को मैं अंडरलाइन कर देता हूं। 3 बुलजाई मैंने यूज कर लिए हैं, ठीक है, ओके। अब मैं राउंड 3 में कोई बुलजाई नहीं दे सकता, राउंड 2 में मैं एक बुलजाई दे सकता हूं। तो मान लो कि ये जो ओमेजा है उसका एक बुलजाई हमने राउंड 2 में यूज कर लिया, तो ये भी डन, खत्म हो गया। अब मैं इधर एक बुलजाई नहीं दे सकता, अब मेरे पास 10 बुलजाई देने के लिए राउंड 1 बचा है। कितने बुलजाई मुझे और डिस्ट्रीब्यूट करने हैं? 1 2 3 4 5, 5 बुलजाई डिस्ट्रीब्यूट करने हैं मुझे राउंड 1 में, जबकि जगह सिर्फ 4 है। सो सोचिए, अगर आपके पास सिर्फ 4 जगह है तो क्या आप सबको बुलजाई दे सकते हो? नहीं। 2 प्रॉब्लम होंगी उसमें। नंबर 1, एक तो जगह ही कम है, इट्स लाइक सेइंग कि 5 लोगों के लिए 4 कुर्सियां हैं। दूसरा, क्या ये सारे के सारे बुलजाई होंगे? ये भी किसने कह दिया? तो ये 2 प्रॉब्लम, इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी गलत है। सो दिस इज द पॉसिबिलिटी। राउंड 2 में 4 बुलजाई होंगे, राउंड 2 में 4 बुलजाई, इसका मतलब ये हर जगह 5 आएगा, 5 5 5 5। राउंड 3 में 2 बुलजाई होंगे, राउंड 3 में 2 बुलजाई होंगे, ठीक है। अब हमें सोचना है कि ये बुलजाई कहां देने, कहां पर हम इसको दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, योनिता का एक बुलजाई हमने यूज कर लिया, इसका मतलब योनिता का बाकी वाला स्कोर जो होगा वो 2 होगा, तो यहां पर तो 2 है, ओके। जेनेका का एक बुलजाई बाकी है, ठीक है। उमेजा का एक बुलजाई हो चुका है, बाकी आएगा 5 और 2, ठीक है, बाकी आएगा 5 और 2, ओके। चलिए कोई बात नहीं। तैंजी में अभी एक 5 और एक 1 बाकी है, तैंजी में एक 5 और एक 1 बाकी है, ओके। अब देखिए ये 5th स्टेटमेंट अब काम आएगा हमें। T and Z, Tansy and Zeneca had the same score in round 1, but different scores in round 3. Tansy and Zeneca had the same score in round 1, but different score in round 3. Same score in round 1, different in round 3. इधर सेम आएगा, मतलब लेट्स से MM जो भी है, आई डोंट नो क्या है, तो मैं भी M डाल रहा हूं। राउंड 1 में सेम, लेकिन राउंड 3 में डिफरेंट। इसका मतलब लेट्स से यहां पर P और यहां पर Q, यहां पर P और यहां पर Q, ओके। राउंड 1 में सेम, राउंड 3 में अलग। टैंजी का स्कोर है 5 और 1, टैंजी का स्कोर अगर है 5 और 1, इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैं मान लो यहां पर 1 दे देता हूं टैंजी में, तो मुझे यहां पर 5 देना पड़ेगा। यहां पर अगर मैं 1 देता हूं तो यहां पर 5 देना पड़ेगा। इसका मतलब जेनेका में यहां पर 5 आएगा, और यहां पर क्या बचेगा? जेनेका का दूसरा वाला 5। सो ये डिफरेंट नहीं रह पाएंगे। अगर इसको 5 दिया तो इसको 1 देना पड़ेगा, अगर इसको 1 दिया तो इसको 1 देना पड़ेगा, बिकॉज सेम है दोनों। और अगर ये 1 है तो जो जेनेका का स्कोर बचा हुआ है ये भी इधर 5 हो जाएगा। दैट मीन्स दिस इज नॉट पॉसिबल। दैट मीन्स ये 1 नहीं हो सकता, इसको 5 ही रखना पड़ेगा। दैट मीन्स ये भी 5 हो जाएगा, 5, ये भी 5। इसका मतलब यहां पर जो टैंजी का स्कोर बचा हुआ है 1 5 5, और यहां पर कोई एक वैल्यू जो अलग है लेकिन 5 नहीं है, राइट। तो मैं अब ये P और Q M N निकाल देता हूं, बिकॉज इनका काम खत्म हो गया है। 5 4 5 2 5 वो 1, ठीक है। अभी तक इतना फिलहाल काम खत्म हुआ है। दूसरा चीज, यहां पर तो 5 आ नहीं सकता, सो एक 5 राउंड 3 को चाहिए, है ना। राउंड 3 को एक 5 चाहिए, तो वो यहां तो आ नहीं सकता, तो यहीं आएगा 5। सो उमेजा में 5 5 2 थे स्कोर, तो 2 जो बचा है वो इधर आ जाएगा। तो राउंड 1 कंप्लीट, राउंड 2 कंप्लीट। राउंड 3 का एक वैल्यू नहीं मालूम है, राउंड 3 का एक वैल्यू नहीं मालूम है। अब सोचिए
राउंड 3 में 20 प्लस सी आएगा स्कोर। 3 का मल्टीपल जो नहीं है वो है जाइला का स्कोर। याद है ना, एक स्कोर 3 का मल्टीपल नहीं है, कौन सा? जाइला का। सो ऑब्वियसली बात है कि जेनेका का स्कोर जो है वो 3 का मल्टीपल होगा। इसका मतलब या तो सी 1 होना चाहिए या तो 4 होना चाहिए, है ना। अगर सी 1 है तो 21 3 का मल्टीपल है, और अगर सी 4 है तो 24 वो भी 3 का मल्टीपल है। अगर मैं 1 डाल देता हूं तो राउंड 3 में टैंजी एंड जेनेका का स्कोर सेम हो जाएगा, बट उनके स्कोर तो डिफरेंट थे राउंड 3 में। इसका मतलब ऑब्वियसली 1 नहीं हो सकता, क्या होगा? 4 ही होगा। तो टोटल इसका 24 है और ये हो गया 4, और यहां पर हमारा सेट कंप्लीट होता है। मॉडरेट टू डिफिकल्ट। क्यों डिफिकल्ट? मैं क्यों सिर्फ मॉडरेट नहीं बोल रहा हूं? बिकॉज इट्स अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड आपको शांति से हर एक जगह कामनेस के साथ मूव करना है ना। टेबल अब फुल हो चुका है, हमारे पास सारी डिटेल्स है, तो वी कैन गो टू द क्वेश्चंस नाउ। चलिए, व्हाट वाज द हाईएस्ट टोटल स्कोर? हम जानते हैं 25, राइट? बिकॉज अब हमें थोड़ा सा याद रहने लगा है। सो 25 इज द हाईएस्ट स्कोर, जाइला का स्कोर था। क्वेश्चन 2, व्हाट वाज जेनेका's टोटल स्कोर? ये भी हमें पता है 24, अभी लास्ट में हमने ढूंढा था। 20 प्लस 4 24, राइट? जेनेका का टोटल स्कोर 24। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statements is true? जेनेका का स्कोर was 23, no. जाइला का स्कोर was 23, no. जेनेका was the highest scorer, no. जाइला was the highest scorer, yes. So एक स्टेटमेंट अगेन हमें याद रखना कि जाइला का स्कोर 25 था और वो हाईएस्ट स्कोरर है। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट वाज टैंजी स्कोर इन राउंड 3? टैंजी स्कोर इन राउंड 3, तो डेटा देख लेते हैं फटाफट से, अगर आपको याद नहीं है तो, जस्ट टू बी श्योर। टैंजी का स्कोर राउंड 3 में 1 है। टैंजी का स्कोर राउंड 3 में 1 है, सो आंसर आएगा 1। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, very interesting question. So what I will ask you to do is pause the video right here right now, pause the video, go back to the data, और अपने से खुद से बिना सॉल्यूशन देखे, बिना वीडियो को रेफर किए खुद से एक बार सॉल्व कर लो अपने से। दैट मीन्स डोंट लुक एट मी सॉल्विंग इट, आप खुद इसको सॉल्व कीजिए। बिलीव मी, वंस यू सॉल्व इट, इट विल गिव यू अ फीलिंग ऑफ अकम्प्लिशमेंट, और अब आपसे ये लेस देन 10 मिनट से आराम से हो जाएगा, बिल्कुल आराम से, राइट? So this was the third set, which was very interesting, beautiful set. Solve करने में बहुत मजा आता है, because it's a puzzle, right? It's like a puzzle but related to data interpretation, right? It's a kind of a puzzle but data interpretation. So this is like an advanced data interpretation जो आप बोल सकते हैं, right? So that's set 3. Now let's move on to set number 4, right? Again very interesting set. चलिए, let's try to do it. All right. So the data is on the screen. बहुत ही छोटा सा डेटा है, बहुत ही छोटा सा डेटा है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू गिव यू अबाउट 8 minutes. आई एम गोइंग टू गिव यू अबाउट 8 minutes. लेवल ऑफ डिफिकल्टी मॉडरेट, टेक 8 minutes. उसके बाद यू एक्सपेक्टेशन क्या है? 8 मिनट के बाद एक्सपेक्टेशन ये है कि एट द एंड ऑफ 8 minutes यू शुड हैव एवरीथिंग सॉल्व्ड, सो दैट आप सीधा क्वेश्चन आंसर मार्क कर सको, right? So I'm going to get out of the screen. You have 8 minutes. Pause the video. Try to solve. Try to figure out everything. Try to figure out what these letters mean, and then you will have a look at the questions. All right. So I hope by now you are done, and by now you have had a look at the data. You've understood it. You found out what are the numbers for the letters. Let me take you through the questions. Question 1. Which digit does the letter A represent? It's a theta question. अभी तक अगर आपने solve कर लिया है तो it's going to be very easy for you. I'm going to get out of the screen. I'm going to give you 1 minute. अगर आपने अभी तक figure out नहीं किया है, take 1 minute. Try to mark your answer. I mean, try to type it somewhere, write it somewhere, and then we'll start with the question 2. All right. So I hope you are done. Let's go to question number 2. Which digit does the letter B represent? Which digit does the letter B represent? Theta question. Take 1 minute. Mention your answer somewhere and resume the video. Okay, so I hope by now you're done. Question 3. Which among the digits 3, 4, 6 and 7 cannot be represented by the letter D? Take 2 minutes. It's a moderate question. Take 2 minutes. Try to mention your answer somewhere and resume the video when you're done. Alright, I hope by now you're done with question number 3.
Question number 4. Which among the digits 4, 6, 7 and 8 cannot be represented by the letter G? Again, it's a theta question. Moderate level difficulty. Take 2 minutes. Resume the video when you are done. Alright, so I hope by now you are done with this question as well. It was a very interesting question. Let's go back to the data and let's try to solve it together. The following table represents addition of two 6-digit numbers. So they are adding two 6-digit numbers given in the first and the second rows, while the sum is given in the third row. So this plus this is this. Okay. In the representation, each of the digits 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, they have been coded. So each has been coded with one letter among A, B, C, D, E, F, G, H, J, K. There is no I. With distinct letters representing distinct digits. So बहुत ही अच्छा हुआ. Distinct letter, distinct digits. So कोई overlap नहीं है. कुछ ऐसा नहीं है कि intersection होगा. Every letter represents a specific distinct digit. अपना काम क्या है? हमें सबको identify करना है. कोई बात नहीं. These are the easy kind of questions. Why? Because there is no other complication. आपको बस addition के rules आने चाहिए और कुछ नहीं. You must know the rules of addition. That's it. Addition के rules क्या होते हैं? So a plus b क्या होगा? Carry कब आएगा? Carry का मतलब क्या होता है? And so on. अब सोचने का स्टार्ट करते हैं. Okay. So we've got two 6-digit numbers and they add up to 7 digits. So it's ये 6 digit है. ये 6 digit है. Answer 7 digit है. Think about it. For example, if you have 9999, यहां पर भी 999999 6 digit numbers, तो भी इनके आंसर में यहां पर हमेशा 1 ही आएगा. 1 something. 2 नहीं आ सकता है ना. Think about it. For example, you are adding 9,99,999 plus 9,99,999. They cannot add up to 20 lakhs. है ना. 20 लाख से कम ही होंगे. यहां पर 1 ही आएगा. इधर कुछ और आ ही नहीं सकता है. अगर आएगा तो 1 ही आएगा. So here what I'm saying, अगर आएगा तो 1 ही आएगा. इसका मतलब ये हमें समझ में आ चुका है भैया a is equal to 1 है. ये हमारा पहला आंसर है. So ये है लेटर और ये है नंबर. A1 है. बहुत बढ़िया. तो जहां जहां पर A दिख रहा है आपको उधर 1 कर दीजिए. ये 1, ये 1, ये 1, ये 1, ये 1, ये 1. ओके. एक छोटी सी विक्ट्री. सो दिस इज अ विक्टोरियस बिगिनिंग. अब सोचिए और क्या हम इससे इंटरप्रेट कर सकते हैं. और कौन सा लेटर है जो सबसे आसान है? F plus F gives me F. F plus F gives me F. जैसे कि 1 plus 1 2, 2 plus 2 4, 3 plus 3 6, 4 plus 4 8, 5 plus 5 10. I mean 0. 6 plus 6 12, 2 आ रहा है पीछे. 7 plus 7 14 का 4 आ रहा है पीछे. 8 plus 8 16 का 6 आ रहा है पीछे. 9 plus 9 18 का 8 आ रहा है पीछे. 1 to 9 में तो ऐसा पॉसिबल नहीं है. इसका मतलब कौन सा डिजिट बचा हुआ है? 0. 0 plus 0 is the only case. That means ये दूसरी छोटी सी विक्ट्री F is 0. यहां पर 0, यहां पर 0, इसलिए यहां पर भी 0 है ना. इसलिए यहां पर भी 0. F ये 0. देखिए कितने सारे डिजिट ऑलरेडी पता चल गया अपन को. ये भी 0. H plus H पीछे 0 आ रहा है. H plus H पीछे 0 आ रहा है. मतलब ऑब्वियसली H 0 तो नहीं हो सकता क्योंकि वो तो F बन चुका है. और कौन सा केस है जहां पर सेम नंबर्स को ऐड करके पीछे 0 आ रहा है? सोचिए. 1 plus 1 2, 2 plus 2 4, 3 plus 3 6, 4 plus 4 8, 6 plus 6 12, 7 plus 7 14, 8 plus 8 16, 9 plus 9 18, but 5 plus 5 10. पीछे 0 आया. बहुत बढ़िया. एक चीज समझ में आ गई कि भैया H 5 है. 5 plus 5 10 बन के इधर एक कैरी आ रहा है. और 5 plus 5 10 इसका मतलब इधर कोई कैरी नहीं है. इधर कोई कैरी नहीं है. तो एक और चीज पता चल गई कि भाई H 5 है. बहुत बढ़िया. H is 5. और कहीं पे H दिख रहा है आपको? H और कहीं पे नहीं है. ठीक है, कोई बात नहीं. H is 5. अब हम B के बारे में सोच सकते हैं. Think of this. 1 plus B plus 1 is 1. Obviously 1 तो नहीं होगा ना. वो कैरी ही बढ़ सकती है. कैरी क्या बढ़ेगी? 1 plus B plus 1. सोचिए. 1
प्लस बी प्लस 1 इज ऑब्वियसली इट हैज टू बी 11, तो भी इधर 1 आ सकता है, बाकी 1 नहीं आ सकता। अगर इधर 11 है तभी जाकर यहां पर 1 कैरी आएगा। सो b हैज टू बी 1 प्लस b प्लस 1 इज 11, सो b हैज टू बी 9, b हैज टू बी 9। एक और चीज पता चल गया हमें कि b भी 9 है, b is 9, b is 9, b is 9। चलो ये पता चल गया। ओके, नाउ g प्लस k 1 इधर आ रहा है, सो ऑब्वियसली g प्लस के 11 होना चाहिए, 21 तो हो नहीं सकता, तभी इधर एक कैरी आएगा। g प्लस के 1 अगर एंड 1 में एंड हो रहा है तो g प्लस के 11 ही हो सकता है, 21 तो हो नहीं सकता, दो सिंगल डिजिट 21 तो बना नहीं सकते। g प्लस के 11, इसका मतलब इधर एक 1 कैरी, और देखो 1 प्लस 1 प्लस 0, तो c होना चाहिए 2, एक और डिजिट मिल गया है, c इज इक्वल टू 2। कितना आसान है, आपको बस एडिशन के रूल्स पता होने चाहिए और कुछ नहीं, एडिशन के रूल्स प्लस लॉजिक, दैट्स इट, है ना। c इक्वल टू 2 है। ओके, नाउ लेट मी फोकस ऑन दिस, g प्लस के 11 है, g प्लस के 11 है ना। अभी तक हमें g और k नहीं मालूम है, j एंड g नहीं मालूम है, इतनी चीजें नहीं, बाकी सब कुछ दिख रहा है आपको, देखो बाकी सब कुछ मिल चुका है। g प्लस के 11 किस किस केस में बन सकता है, तो ये हो सकता है 9 2, मतलब 9 2 या 2 9, फिर 8 3 7 4 6 एंड 5, इतने केसेस हो सकते हैं। 9 2 मतलब उन दोनों में से कोई भी 9 कोई भी 2, 8 3 कोई भी 8 कोई भी 3 एंड सो ऑन। चलिए, क्योंकि c हमें 2 मिल चुका है, इनमें से कोई 2 नहीं हो सकता, इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी गई, है ना। और हमें h5 मिल चुका है, तो ये पॉसिबिलिटी भी गई, मतलब 2 ही पॉसिबिलिटी बचे, क्योंकि 8 भी कोई अभी तक मिला नहीं है, 3 भी अभी तक कोई मिला नहीं है, 7 भी अभी तक कोई मिला नहीं है, और 4 भी अभी तक कोई मिला नहीं है। सो ये दोनों चीजें पॉसिबल हैं, 8 3 7 4, ये दोनों चीजें पॉसिबल हैं। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट। इसको मैं अभी हटा देता हूं। ओके, चलिए, इधर मैं लिखूंगा g, इधर मैं लिखूंगा k, और g के साथ j भी जुड़ा हुआ है, तो इधर मैं लिखूंगा j। अगर g 8 है, मतलब मैं यहां से छोटा सा टेबल बनाना चाहता हूं मैं यहां पे पॉसिबिलिटीज का। अगर g 8 है तो k 3 है, और अगर g 8 है तो j 7 है, ठीक है। ये हुआ केस नंबर 1। दूसरा केस, g 3 है तो k 8 है, और g 3 है तो j 2 है, बट क्या j 2 हो सकता है? नो, क्योंकि 2 तो c है, सो ये केस गया। है ना, ये केस गया, ये 2 है, ये 2 आ नहीं सकता। ओके, थर्ड केस, अगर g 7 है तो k 4 है, अगर g 7 है तो k 4 और j 6 है, हाँ ये हो सकता है। एंड फोर्थ केस, अगर g 4 है तो k 7 है, और अगर g 4 है तो j 3 है, हाँ ये भी हो सकता है, बिकॉज 3 अभी तक कोई है नहीं। ये 3 पॉसिबिलिटी है, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। दीज 3 आर द पॉसिबिलिटीज गाइस, दीज 3 आर द पॉसिबिलिटीज। और हमारे पास ऐसा कोई डेटा नहीं है जिसकी मदद से हम किसी एक केस पे आ सके। वी हैव टू स्टॉप हियर, आगे बढ़ नहीं सकते हैं, शायद क्वेश्चन ऐसे हो कि आगे के डेटा की जरूरत भी ना पड़े। सो लेट्स गो टू द क्वेश्चंस। व्हाट डिजिट डज द लेटर रिप्रेजेंट? ए। ए पहला ही हमने क्रैक किया था कि ए हैज टू बी 1, सो आंसर इज 1। पहले ही हमने इसको क्रैक किया था। इसका लॉजिक क्या है? इसका लॉजिक क्या है कि भैया अगर आप दो नंबर को ऐड करें, लेट्स से यू आर एडिंग x एंड यू आर एडिंग y, लेट्स से x में 3 डिजिट है, y में भी 3 डिजिट है, और अगर आपको सम z 4 डिजिट मिल रहा हो तो इट हैज टू बी 1 एंड सम 3 डिजिट्स। यही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता। तो ये लॉजिक से हमें समझ में आया था, दिस इज द लॉजिक।
जिसकी मदद से हमने क्रैक किया था क्वेश्चन 1। आगे बढ़ते हैं। विच डिजिट डज द लेटर बी रिप्रेजेंट? बी, आई रिमेंबर इट वाज 9, बट एक बार फिर भी आई विल चेक। बी इज 9। देखिए बी इज 9, तो ठीक है, यू आर राइट, बी इज 9। राइट, 2 वेरी इजी क्वेश्चंस। अगर आपने क्वेश्चन आधा भी सॉल्व किया होगा ना तो ए और बी तो मिल ही जाएंगे आपको। अगर आप जी के वाले चक्कर में नहीं पड़े, फिर भी इतना भी करके निकल लिए 5 मिनट में, वर्थ इट, इट्स वर्थ इट। योर गोल इज टू स्कोर द मार्क्स। मार्क्स कहीं से भी आ रहे हो, फर्क नहीं पड़ता। सेट नंबर 1 से आ रहे हैं, सेट नंबर 5 से आ रहे हैं, सेट नंबर 8 से आ रहे हैं, डज नॉट मैटर, है ना। चलिए वापस चलते हैं क्वेश्चन 3 पे। विच अमंग द डिजिट्स 3, 4, 6, 7, याद रखिए 3, 4, 6, 7 कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय लेटर डी। 3, 4, 6, 7 उन्होंने ऐसा पूछा है कि भाई 3, 4, 6, 7 में से डी क्या बिल्कुल नहीं ले सकता। चलो डेटा पे चलते हैं। 3, 4, 6, 7 याद रखना। 3, 4, 6, 7 3, 4, 6, 7 में डी क्या नहीं ले सकता। ओके, देखिए 7 जो है केस नंबर 1 में भी है इधर जे के पास, केस नंबर 2 में भी है जी के पास, और केस नंबर 4 में भी है के के पास। तो क्या आप इतना देख पा रहे हो कि 7 ऑलवेज इन तीनों में ही रहेगा, किसी भी केस में इनसे बाहर नहीं जाएगा, मतलब डी 7 नहीं ले सकता है। सो हमारा आंसर है 7। सो आंसर इज 7। राइट, क्या रीजन है इसका कि भाई 7 जो है वो या तो जी के पास जाएगा, या तो के पास जाएगा, या तो जे के पास जाएगा ऑलवेज, बट डी के पास नहीं जा सकता, है ना। क्वेश्चन 4, विच अमंग द डिजिट्स 4, 6, 7, 8 कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय लेटर जी। जी का इनमें से 4, 6, 7 में से क्या नहीं हो सकता। तो जी याद रखना, जी देखना है और देखना है 4, 6, 7, 8, 4, 6, 7, 8। जी 8 हो सकता है, 4 हो सकता है, जी की बात कर रहे हैं हम लोग, सॉरी 8 हो सकता है, 7 हो सकता है, 4 हो सकता है, 8 हो सकता है, 7 हो सकता है, 4 हो सकता है। क्या बच गया? 6। जी कभी 6 नहीं हो सकता। सो वो हमारा आंसर है, जी कैन नॉट बी 6। राइट, बिकॉज जी जो है वो 4 हो सकता है, यस, 7 हो सकता है, यस, और 8 भी हो सकता है। ये हमने तीनों केसेस में देख लिया था। जी जो है वो 6 नहीं हो सकता। दैट्स व्हाई 6 इज आवर आंसर। Right, so this was again a very easy, I would say this was easy set, correct, and that too the first 2 questions were very easy. Everyone should have solved them, everyone should have attempted this set. उसमें भी कम से कम at least first 2 questions तो सबको करने चाहिए। last 2 question में हो सकता है a very few of you might get confused and would want to leave the set. I am fine with that, but if you are giving it let's say 5, 6, 7 minutes and if you are coming out with two victories, I am okay with that. Right, so with that let's move to our next set.